one of the best atmospheres you can find in Delhi, especially the location where you see people doing fitness and the kids playing. Or the way we see the coaches are putting a lot of efforts. There are three coaches and very senior, Mrs. Sunita Sharma, she's a Dronacharya, Mr. Bantu Singh, he's level 2 coach NCA. Plus he has played a lot of cricket. Over the years he was captain, vice captain of Delhi cricket also in the Ranji Trophy, the Dilip Trophy they play. So I think the kids are in the right hands, and the atmosphere is just, lovely. We have 15 member organizations who are the member of PSPB, and PSPB really wants to promote sports, and it's been doing it for a decade now. But the only thing is that we have taken new initiatives. We are having camps. We had a badminton camp. We have this is the second edition of the cricket camp, boys and girls, because the girls, they are also coming up with the new IPL league, for women which just started. We saw the first edition. So the response is good, and it's becoming very popular among girls also. So it's a good initiative. What we thought, way we thought, it has gone little above that. The response is very good. See, girls are not behind. If you look in other games also, all the Indian athletes, women athletes, they're doing so well, and I think it is just an eye opener. And the way we have seen PV Sindhu, Sania Nehwal, and all the other Ashwini Ponappa and other top TT players like Manika Batra, they are all from PSPB. So they all are doing well, and they all the youngsters now they are very well connected with the social media, so they know that they are the stars, and if you want to become like that, you really have to work hard. In cricket, you see the women's, Harmeet Kaur is really doing well, and people are really, all the girls are very focused. They want to study also. In studies also they are doing well, and plus they are playing sports also. See, it is giving scholarship, not even scholarship, they are giving jobs also. In the past also, if you see, we have regular employees, and by giving addition of scholarship and adding more numbers, basically they are promoting sports all over India in all the games. They are not curtailed to just 5 games or 10 games. They are almost supporting more than 20 games. No, we are working on it. We just had a archery tournament in Sonbhadra, and which is in UP, and there we got a lot of response, and we saw so many, more than 250 archers. They participated, and one of the archers, he scored 570 out of 570. So after going there, we are doing bit by bit, step by step. But we are there. We are coming up with this scholarship scheme also, where we are going to cover the games which are not very popular, like archery, swimming, boxing, wrestling. Because boxing and wrestling, India always win medals. So I think by doing so, we will promote more sports. See, actually, I'm really happy because looking at the response from the parents and all the member organizations, and few of the kids, they are from the other academies also, one or two which are good and they are needy. So we are helping them also. I'm very happy, because see, for a sports person, and especially a cricketer, coming to a cricket ground, you always feel happy. Whatever things you have on your mind, in office, you come and forget everything. When you see young kids training, and training in a right way with the trained coaches and their hard work, because all the kids, they report by 6:45, though they have summer holidays. But I'm really happy the way, the energy level they have in them, the passion. So as a cricketer, I'm very happy. See, my old days, we didn't have so many facilities. Cricket was not so popular. It was just getting popular, and it became popular after '83 World Cup, when India won the World Cup. Things have really changed. It is the opposite. The facilities. Earlier days, we used to come, we used to roll the wickets. For the seniors, that was the basic for a junior to come into an academy or a club. So all that we have done, but now they want everything ready. The facilities are more. You have mechanical rollers, you have good wickets, you have different practice wickets, more practice wickets. So things have really changed, and the facilities are so much, and especially in Asian countries, and especially in India, the way BCCI and other oil companies are putting their, contributing a bit, in every manner. So I'm really happy to be here. I am Bantu Singh, former cricketer, former Delhi Ranji Trophy player, and myself representing as a head coach here in this camp.
बाकी देखिए ये कैंप जो लगाया है पीएसबी टीवी ने, बहुत ज़बरदस्त कैंप है और बहुत से इसमें न्यू कमर्स भी आए हैं बच्चे जो स्टार्टिंग एज फ्रॉम 6-7 ईयर्स। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट इतने छोटे बच्चे भी इस कैंप में आए हैं एटलीस्ट, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम फार अवे। सो एटलीस्ट कम से कम वो आए हैं बच्चे, दैट इज़ वेरी गुड साइन कि उनको मालूम पड़ेगा कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। मोस्टली देखिए दैट इज़ फ्रॉम 12 to 16 ईयर्स का कैंप है, लेकिन आई एम हैप्पी टू सी लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रंस आर ऑलमोस्ट 8 years 6 years। तो ये एक अच्छा शुरुआत है, दैट इज़ वंडरफुल। देखिए पीएसपी भी जो स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं और इनका देखिए नाम ही स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द कर्टेन। सो मैं आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ललित भट्ट सर जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया। लास्ट ईयर भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था एट मॉडर्न स्कूल, दिस ईयर हमने यहाँ तालकोटरा पे किया। तो देखिए ये जो इंकरेजमेंट है और ये जो पुशअप है स्पोर्ट्स में, इंकरेजमेंट है, ये नीडेड है इन बच्चों को। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं दे कांट अफोर्ड इवन दैट, दे कांट अफोर्ड इवन किट। तो देखिए पीएसबी का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि वो काफ़ी चीज़ें बच्चों को सबको किट्स प्रोवाइड की हैं और फिर उनका इतना पेन रिफ्रेशमेंट्स। तो ये बिहाइंड द कर्टन जो एक चीज़ होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम लोग तो ऑन ग्राउंड पे अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो पीछे से सपोर्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें जो है ना एक डिफरेंस डालती है। मैं समझता हूँ कि जो ये कैंप है जिन बच्चों ने अटेंड किया है, एटलीस्ट दे कम टू नो कि ये क्या चीज़ है, क्रिकेट कैसे। देखिए टीवी पे बहुत आसान लगती है, आईपीएल मैचेस देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी देख रहा है और बूढ़े भी देख रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे प्रैक्टिकली आप आते हो, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना आपको उसमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, दैट इज़ एक्चुअली जब बच्चे को समझ आती है। तो जो ये कैंप है और जिसमें ये बच्चे छोटे जो इस यंग एज के लिए प्लेयर्स आ रहे हैं, चिल्ड्रंस आ रहे हैं, तो वो लगता है कि उनको एटलीस्ट ये समझ तो आएगी कि ग्राउंड में हमें करना क्या है। एटलीस्ट देखिए देखना बहुत आसान है, बट व्हेन यू पुट योर एफर्ट्स दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कितना स्टेमिना चाहिए उसके लिए, मुझे अपना बॉडी मेंटेन भी करना है, स्ट्रेचिंग है, बहुत चीज़ें हैं जो इस कैंप में बच्चों ने सीखी है। एंड मे बी आई होप कि वो उसको अगर कुछ बच्चे इनमें से कैरी ऑन करेंगे और मोस्टली करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली दे विल इट हेल्प्स। देखिए आपने ये मेरे दिल की बात को छू दिया है। ये इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी मैं समझता हूँ कोरोना से पहले का अगर ईरा देखें तो टोटल स्पोर्ट्स को निगलेक्ट किया हुआ था पेरेंट्स ने ड्यू टू देयर ट्यूशंस। एक देखिए एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है, 8 बजे जाता है और 2 बजे आता है, फिर उसके बाद उसकी ट्यूशन 3-4 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, 6 बजे तक उसकी ट्यूशन है। देन अगेन वो ट्यूशन से आता है तो मदर उसके बोलते हैं कि होमवर्क करिए। तो हम बच्चों को स्पेस दे ही कहाँ रहे हैं? देयर इज नो स्पेस फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले। तो ये कोरोना से पहले तो एक ये मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल अवेयरनेस होते हुए भी निगलेक्ट की जा रही थी। आफ्टर कोरोना इट इफेक्ट्स 2 साल कोरोना के बाद जब पेरेंट्स को मालूम हुआ कि भाई ताकत ज़रूरी है, बच्चे में एक इम्यूनिटी पावर जो होनी ज़रूरी है, तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ उसमें। वहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंजेस देखे। मैंने एज ए कोच, हम अकेडमी कर रहे हैं तो एज ए कोच देखा। लेकिन सॉरी टू से अभी रिसेंटली अगर आप दिस ईयर की बात करेंगे या लास्ट ईयर करेंगे, अगेन वी आर बैक टू देयर सेम रूटीन कि भाई ट्यूशन है, पढ़ना। आई अंडरस्टैंड कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स को अगर बैलेंस करोगे तभी तो बच्चा आगे चल पाएगा। अगर हमारे शरीर में ताकत ही नहीं होगी, हम स्पोर्ट्स बच्चे को ग्राउंड में जाने ही नहीं देंगे, तो वो आगे तो मुसीबत आएगी। आज देखिए जो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स इज द मेन डिसीजन मेकर। अब आप पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स खिलानी है या नहीं खिलानी। पहले तो वो इस चीज़ पे फर्म हो। क्या हो रहा है कि वो दोनों एक किश्ती में पैर रखना चाह रहे हैं कि नहीं कि ये आ भी जाएगा, अच्छा कभी जल्दी आ जाएगा, कभी देर से आ जाएगा। तो माई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो, जस्ट यू लीव इट, यू जस्ट कैरी ऑन विद योर स्टडीज। बट 75% जो बच्चे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ बच्चे सारे क्रिकेट खेल रहे हैं और अदर स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं। तो हाउ दे आर मैनेजिंग? तो जब पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं तो देन उसमें से मुझे लगता है कि 10% पेरेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है एंड दे हैव चेंज देयर माइंड, और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को उस तरफ लेके जाते हैं। दैट इज़ गुड साइन। देखिए ये पेरेंट्स को आज की डेट में समझना पड़ेगा कि अगर हम स्पेस देंगे बच्चों को, एटलीस्ट 2 आवर्स तो दीजिए खेलने के लिए। अगर वो 2 आवर्स हम नहीं देंगे तो फिर क्या कैसे खेलेंगे? अगर बच्चे
को आप स्पेस ही नहीं देंगे। और ये टोटल डिसीजन है जो है एट द मोमेंट पेरेंट्स का है। सो पेरेंट्स हैज़ टू थिंक कि हम किधर जा रहे हैं, अपने बच्चे को कहाँ लेके जाएं। देखिए हमेशा मैंने देखा है कि पीएसबी ऑयल कंपनी जितनी भी है, मैं अगर ओएनजीसी की बात करूँ और इंडियन ऑयल की बात करूँ, पेट्रोलियम बोर्ड की बात करूँ, EIL की बात करूँ, देखिए ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने प्लेयर्स को हमारे टाइम पे नौकरी प्रोवाइड की। एक जज्बा था और वो एक क्रिएशन ऑफ द जॉब थी, क्योंकि हम लोग जब अपने यंग टाइम पे खेलते थे तो हमारे को 3-3, 4-4 जगह से ऑफर होती थी अच्छे प्लेयर्स को कि भैया आप आइए हमारे यहाँ नौकरी भी कीजिए और हमारे यहाँ खेलिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक योगदान है इन इंस्टीट्यूशंस का। और मैं समझता हूँ कि PSPB का आई एम वेरी रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आज भी देखिए वो बिहाइंड द कर्टन कुछ ना कुछ कैंप्स के जरिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के लिए जॉब भी दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सोसाइटी के लिए इनका एक योगदान है। देखिए गर्ल्स का मैं डेफिनेटली पहले भी गर्ल्स खेल रही थी, और जो अब एक इनमें जोश आया बच्चों के लिए, मैं ये यहाँ BCCI का एक उनको कहना चाहूँगा कि जो BCCI ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, गर्ल्स क्रिकेट को उन्होंने प्रमोट किया है और बिल्कुल मेंस के स्टेटस पे ले आए हैं। तो यहाँ से जो छोटे बच्चे जो गर्ल्स हैं वो बड़ी ज़्यादा इंकरेज हो गई हैं, और वो इंकरेजमेंट से देखिए वो ग्राउंड में आनी शुरू हो गई है। पेरेंट्स को लगने लगा कि गर्ल्स के लिए भी कुछ है, तो पेरेंट्स का परसेप्शन माइंड चेंज हो गया। तो देखिए ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, BCCI हमारा एब्सोल्युटली वंडरफुल दे आर डूइंग फॉर द क्रिकेट, जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे जो होना चाहिए, क्लब लेवल पे जो होना चाहिए, दे आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म। तो वो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों से, और जैसे अभी वुमेन्स IPL हुआ तो देखिए उसमें कितना क्रेज आया, कितना बच्चे में गर्ल्स में एक इंकरेजमेंट आई है। और देखिए सभी को लगा कि अगर हम कुछ मेहनत करें, 2-4 साल अगर इसमें लगाएं, दम लगाएं, तो वी कैन डेयर। तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। वुमेन्स के लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया BCCI ने, और बहुत ज़बरदस्त इसमें एक अब मैं समझता हूँ फ्लरिशनेस आने लगी है, बहुत पूल ऑफ प्लेयर्स आने वाले हैं। आपका क्या नाम? प्रियदर्शिनी। आप कितने साल से खेल रहे हैं? मैं 4 साल से। ओके, किस तरह का कैंप रहा और कैसा मजा आया इस कैंप में? हाँ, तो कितनी प्रैक्टिस रही? बहुत सारी रही थी। स्टैंड सिखाया, डिफेंस सिखाया था, बॉलिंग सिखाई, बैटिंग सिखाई। आप क्या करते हो, बैटिंग करते हो कि बॉलिंग करते हो? बैटिंग बैटिंग करते हो। तो स्कोर हुआ कुछ इसमें, और क्या क्या सीखने को मिला? और फील्डिंग भी सीखने को मिली। फील्डिंग भी सीखने को मिली। और क्या हेल्प मिलती है ऐसे कैंप करने से? बताया ऐसा कैंप होता है तो किस तरह की हेल्प आपको मिलती है गेम सुधारने में? गेम सुधारनी है, वो बॉलिंग करना मतलब इम्प्रूव करता है हमारी स्किल्स को। क्या नाम आपका? बॉलिंग। वाली। और क्या कौन सी क्लास में स्टूडेंट है? मैं 7th। कौन से स्कूल से? DPS आरकेपुरा। DPS आरकेपुरा से। यहाँ कैंप के लिए आए, किस तरह का माहौल रहा, कैसा रहा कैंप? और ये बहुत अच्छा रहा। लाइक इतने सारी न्यू चीज़ें हमने लाइक सीखे हैं, बहुत सारे, कैसे लाइक बैटिंग करते हैं, कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बॉल को कैच करते हैं। और आप क्या खेलते हैं? मैं बैटिंग करते हैं। और क्या इसमें बैटिंग के अलावा और क्या क्या सीखने को मिला आपको? लाइक बॉलिंग जैसे, हाँ और हमने बॉल को कैच करा, हाँ। कैसे सीखते हैं। और भी अपना नाम बताइए। ऋतु भट्टाचार्य। क्या बैटिंग करते हैं, क्रिकेट का वो बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं बैटिंग करती हूँ। बैटिंग करते हैं। सारे बैट्समैन ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ कैंप में क्या क्या सीखने को मिला? हमें स्टैंड सीखने को मिला, हमने बॉल को हिट सीखा, बॉल को हिट करने को सीखा। हिट करने को मिला। तो क्या आपका जो आपकी टीम डिवाइड हुई थी यहाँ पे, टीम की तरह से खेले थे, तो उसमें तो आपकी टीम जीती, क्या रहा उसका टीम का? वैसे तो मैच कल था, बट हाँ वैसे हम My name is Abhijit Bhattacharya. I'm a former volleyball player and currently working with ONGC. Sir, two of my daughters have joined the camp, and we got to know from our internal group that this is one camp organized for the young kids and for the girls for the first time in cricket probably. I thought I have 2 daughters, so why not we take them here. I joined ONGC in 1998, and together with ONGC I was also representing the Indian team for 10 years. So post my career in active career in ONGC, I played for the team for 11 years, and then I retired from sports, and I am currently working with CSR department of ONGC. Contribution of oil companies is huge in Indian sports because they are the one who give the best of the facilities. Say for example ONGC, Oil, BPCL, IOCL, GAIL.
all of them recruit sportsmen. And the youngsters who take up sports in a younger level from different small cities and towns, they look up for this job. And when they get absorbed, then they get a bigger platform to represent the state, represent the country as well as the PSPB. And also right now, like ONGC is coming up with a sports scholarship schemes, which is like has been approved by ONGC board, and they are also thinking to increase the number of students so that more and more children get this opportunity and get encouraged. So 250 sportsmen probably for this year ONGC is taking up as a sports scholarship for in 22 disciplines. So I am sure other departments or other companies are doing this. And in India, we only when PSUs take up sports seriously, then the sports will be more popular at the grassroots. Say for example, you can take the simple example of Virat Kohli. When it started, when no one was knowing Virat Kohli, ONGC employed him. Likewise, Ishant Sharma, Gautam Gambhir, Sehwag was there, KF, and all the top cricketers were part of ONGC and other oil companies. And this is one platform when you get to wear the jersey and get the platform to play with senior players. So it's a huge exposure. They get to play tournaments. Otherwise, if you are an individual struggling in a small village or town, you don't get a team. For instance, for team game, it's a huge platform. For the individual games, they get to play the PSPB tournaments. They get to play the nationals. So this is kind of a platform which is like a stepping stone for every youngster. And oil companies are doing an excellent job. They organize the PSPB meet every year for all the sports. There is like an Olympics for the all companies. When we were playing for ONGC in volleyball, no matter how many tournaments we lost or win, it is the PSPB meet which we have to win. It is kind of Olympics for us. PSPB is the binding force for all these oil companies. They drive it and they help in making policies. They encourage the companies to recruit new sportsmen, take sportsmen in scholarship. And why they are taking sportsmen in scholarship? That they get to represent the PSPB meet. That is one more reason where every team wants to develop. There is a PSPB trophy in it. So all this is like a guiding principle, like what you call, that drives the entire sports ecosystem in this PSU. And it's good. They are doing an excellent job now that one of our colleagues, Gautam Vadera from ONGC is joined as a secretary of PSPB. And with this kind of camps, like say for example this cricket camp and other camps, I think I should also suggest that they should take up camps in grassroots area also, in small towns where we have operations like ONGC, Oil India, IOCF have operations in different villages. So why not take up camps for those children, not only for the employees but for the other kids around surrounding areas? They will be more motivated. So like I have been talking to these girls, they have been playing cricket for quite some time, and I feel that I am not a cricketer, but I can see the way their body language, the steps they are taking. We love the schools. They are coming from traveling long distance for this camp. And Sunita Madam, Dronakare, they all are so senior players, and they are engaged with these kids, like taking the ball, getting hold of each of the players, helping them out. This is something very amazing. I never thought that this kind of environment I will be getting in this summer camp for them. सुनीता शर्मा, मैं द्रोणाचार्य वाडी क्रिकेट कोच रही हूँ विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईपीएल के बाद मुझे ये लग रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेनी शुरू हो गई। पेरेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड कि विमेंस को कोचिंग में डाला जाए और उनको एक प्रोफेशन वाइज इस लाइन पे डाल दिया जाए। आई मीन जैसे पीएसपी जो कैंप ये लगा रही है, आई मीन इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग कैंप, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अगर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए ऐसे लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो यू विल सी कि भाई स्पोर्ट्स विल गो फार ऑन। और जहाँ तक विमेंस क्रिकेट की सवाल है कि ये बेसिक्स है बच्चों का, जो ऐसे इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। यही बच्चे हर कोई नहीं पाल सकता। क्यों? क्योंकि बेसिक सिखाना सबसे टफ है और ग्रास रूट लेवल से लड़कियों को स्पेशली क्रिकेट सिखाना इज़ अ वेरी टफ जॉब। और जहाँ तक रही पढ़ाई की बात, आजकल पेरेंट्स पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई एक अपने में बहुत टफ हो गई है और स्कूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। ट्यूशन्स जो हैं वो भी बच्चों को देनी पड़ती है, तो दे डोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मॉर्निंग का टाइम रखा है, एवरीबडी इज फ्री इन द मॉर्निंग, दे कम हियर विद अ फ्रेश माइंड एंड सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक्स पे वी आर वर्किंग इन दिस कि हाउ टू होल्ड द बैट, हाउ यू लिफ्ट इट एंड हाउ यू शुड होल्ड द बॉल व्हेन यू आर होल्डिंग, व्हाट योर बॉडी एक्शन, आप कैसे फॉलो थ्रू करेंगे। तो ये सब चीज़ें हर जगह नहीं बताई जाती,
ग्रेट डिसीजन अगर ये स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं तो मेरे ख्याल कई कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं कि जो ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अपनी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। कई पेरेंट्स हैं जो बहुत लो तबके बेचारे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को चाह के भी स्पोर्ट्स नहीं दे पा रहे। तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है कि एक बडिंग क्रिकेटर्स को अगर शुरू से ही एक अच्छी डाइट मिले, स्कॉलरशिप के साथ इवन स्टडीज कैन बी ऑल्सो हेल्प बाय दिस, देयर जो भी स्कॉलरशिप वगैरह ये लोग रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एक वो बच्चे फूल की तरह खिल जाएंगे, कि भाई उनको अपना पॉकेट मनी मिलेगा, उनको लगेगा आज हम बैट अपनी मर्जी का खरीद सकेंगे, अपने इक्विपमेंट अपनी मर्जी का खरीद सकेंगे। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इवन आई एम हैप्पी कि अच्छी क्रिकेटर अगर कोई मीडियोकर फैमिली की भी है और कोई लो फैमिली से भी है, तो इनके इस स्कॉलरशिप की हेल्प से वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखा जाए और आपको ये लगे कि विमेंस क्रिकेट के लिए कौन क्या कर रहा है, तो आई थिंक सो इनका ये प्रोग्रेस देख, इनकी ये इनिशिएटिव देख के कि स्पोर्ट्स के पीछे ऐसे लोग अगर लग जाएं, तो मेरे ख्याल स्पोर्ट्स तो इंडिया का धर्रा ही चेंज हो जाएगा। और विमेंस क्रिकेट मैं हैरान हूँ ये देख के कि 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, जिनको अभी ग्राउंड में सेंस नहीं है, बट पेरेंट्स और दादा वो लोग लेके आ रहे हैं इस ग्राउंड पे क्रिकेट के लिए। क्यों? क्योंकि आई थिंक सो ये लोग सबसे बेस्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स दे आर प्रोवाइडिंग, रिफ्रेशमेंट दे आर गिविंग गुड, और यहाँ पर हर कोई ऑफिशियल आर देयर टू लुक आफ्टर कि भी क्या कुछ फैसिलिटीज और इनको एनहांसमेंट के लिए चाहिए, और वो व्हाट एल्स कैन वी डू मोर। सो वी आर हैप्पी कि भाई ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए हैं इन क्रिकेट, नॉट इन क्रिकेट, स्पेशली फॉर विमेंस क्रिकेट। आई एम हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट ललित सर, गौतम वडेरा जी कि ये खुद अच्छे लेवल के क्रिकेट खेले हुए लोग हैं और इनको ये पता है इन एंड आउट क्या है क्रिकेट में और व्हाट हाउ मच दे कैन डू फॉर द। मैं ललित वत्स हूँ, मैं पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड में एडवाइज़र हूँ। देखिए, ये कैंप का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड, जैसा आपको पता है, ये प्रमोशन के लिए है, गेम्स को प्रमोट करने के लिए संस्था बनी हुई है, सोसाइटी है, जिसमें हमारी 15 ऑयल कंपनीज के मेंबर्स हैं। तो प्लेयर्स लोग खेलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग खेलते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, जो उनके डिपेंडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो प्रतिभा घरों में हैं, उसको बाहर निकालने का ये प्रयास है कैंप के अंदर में। और पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड समय समय पर डिफरेंट गेम्स की कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, और ये सही समय था क्योंकि बच्चों की स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं और ये बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर टालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, तो हमने भी हमारे बच्चों को घर से बाहर छुट्टियों में निकाला और उनको ये बहुत ही सीनियर कोच श्री बंटू सिंह और सुनीता शर्मा मैडम, जो द्रोणाचार्य अवार्ड विनर है, उनको हमने अनुबंधित किया और उनके जरिए से इस कैंप की शुरुआत की। और यहाँ पर हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि करीबन 50 से 60 बच्चे और घर से निकल के आए हैं। और एक विशेषकर ये बात भी है कि इसमें गर्ल चाइल्ड बच्चियां भी हिस्सा ले रही हैं, जो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड का हमेशा लक्ष्य ये रहता है कि प्रतिभाओं को निकाला जाए, उन्हें चांसेस दिया जाए। तो ये एक अच्छा मौका था। हम हमेशा ही क्रिकेट का कैंप करते हैं, लेकिन हम दूसरे गेम्स का भी कैंप्स करते हैं, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो हमने ये नई शुरुआत की है और ये वाला क्रिकेट का जो कैंप है बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है, बहुत ही अच्छे बच्चे आए हैं। और मैं इसमें पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको सोचा और विशेषकर बच्चों को यहाँ निकाला। और जो बच्चे यहाँ 2-3 घंटा समय व्यतीत करते हैं, और मैंने खुद देखा है बच्चों में बहुत ही प्रतिभा है और इसी में से कोई बच्चे शायद कल इंडिया लेवल पर खेलेंगे। इसमें विवेक जी खास एक बात रही है, मैं कहूँगा, और इसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ी बात है महिलाओं का योगदान। इस बार जो बच्चियां हैं वो भी आगे आ गई हैं, और छोटी छोटी बच्चियां जो 5 साल 6 साल की हैं और उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, वो भी इस कैंप का पार्ट बनी है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये विशेषकर, और पीएसबीबी ने भी ये पूरा सहयोग दिया है महिलाओं को कि वो लोग आए और इसमें हिस्सा लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कैंप की विशेषता है
कि इसमें सारी मेंबर कंपनीज के बच्चे तो हैं ही, लेकिन जो बच्चे आसपास रहते हैं, जो यहाँ पर एकेडमी में खेलते हैं, वो भी इसका हिस्सा बने हैं। तो ये एक प्रतिभा है जो बच्चों को चांस दे रही है, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं दूँ।